एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਕਰਨ ਗੋਇਲ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਗੋਇਲ, अंशुल गोयल, करिश्मा गोयल, यादवी गोयल, प्रेक्षा गोयल, लविका गुप्ता, आकृष गुप्ता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਨ ਪੈਲੇਸ ਕਾਂਜਲੀ ਰੋਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਤੂ ਟਿੰਗੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਗੂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂ ਟਿੰਗੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫੱਤੂ ਟਿੰਗੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਸਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਕਰਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਿਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਨ ਗੋਇਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈੱਟ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
मुक्ति तक पहुँचाएगा, मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान अंधेरे को दूर करता है। छोटी सी कई बात ज्ञान की जीवन बदल देती कि ख्वाहिशां कभी बंदे दियां बुद्धियां पूरियां कर खुदा बतेरा पर रहिंदियां अधूरी। हजारों ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में ये ओम हमको, अंत में ये ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा, मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण अधर। पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है। पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना।
पंछी उड़ गए। मुसाफिर कहा और इस संसार को सराहा, जिसकी हकीकत यही कि जो भी इस धरती पर आया है उसे जाना पड़ेगा। आप जानते होंगे भगवान विष्णु जिस लोक में रहते हैं उसे विष्णु लोक कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं। भगवान शिव जिसमें रहते हैं वो कैलाश को कहलाता है। अन्य देवता जिसमें रहते हैं वो सर्वलोक कहलाता है। पर हम जीव जिस धरती पर जन्म लेते हैं उस धरती को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। हाँ, ये इसकी सच्चाई है। जिसका भी जन्म इस धरती पर होता है उसकी मृत्यु उसी दिन से निश्चित हो जाती है। अब जब मृत्यु निश्चित है तो महापुरुष कहते हैं आए तो जानेंगे राजा रंग पति, एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बांधे जाने जंजीर। पहली पंक्ति आसानी से समझ में आती है। जो भी आता है उसे जाना पड़ता है। जिसका जन्म हुआ मृत्यु होगी ही होगी, तय है। लेकिन दूसरी पंक्ति को आप ध्यान से सुनिए। एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जाए जंजीर। एक की मृत्यु पीड़ादायी होगी और एक ही सिंहासन के अधिकारी सुखदायी होगी। अंतर कैसे? जीवन जीने पर डिपेंड करता है हमने अपना जीवन धरती पर आकर कैसे जिया। ये अनमोल जीवन महापुरुषों ने यहाँ तक कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्संग ही गावा, साधन नाम मुझ कर द्वारा पाई न जाए पर दुख सवारा। बड़े भाग्य से मिली ये मनुष्य की देह। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि ये साधन है उस मोक्ष को प्राप्त करने का। मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे? क्या ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। जीवन संसार में आकर जैसा जिएंगे वही हमारे उसको आगे के जीवन को तय करेगा। सुख होगा या दुख होगा, आगे की यात्रा पीड़ादायी होगी या सुखदायी होगी। इसलिए संसार समझाते हैं इस संसार में आकर उस भक्ति के रत्नों को एकत्र करो। ऐसा नहीं है रैन गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा चमका कौड़ी बदले जाए। कहीं ऐसा तो नहीं? रात्रि का समय सोकर दिन का खाने पीने में लगी कर दिया और ये जीवन जो हीरे के तुल्य अनमोल जीवन मिला था वो ऐसे ही नष्ट कर दिया। नहीं, याद रखो दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शरणम। ये शरीर इसकी प्राप्ति जितनी दुर्लभ है उतनी क्षणभंगुर भी है। चेतावनी भी साथ में। विवेकानंद जी ने हम मनुष्यों को समझाते हुए कहा, ह्यूमन बॉडी इज प्राइसलेस, one does not get it again and again। याद रखिए, मनुष्य का यह तन
को अपनी मनचाही अवधि पर बढ़ा पाए? नहीं, मात्र 50 साल में इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। क्यों? निसंदेह जीवन अनमोल तो है, पर साथ ही साथ चेतावनी क्षणभंगुर भी है। उन्होंने कहा प्राइसलेस, किसी कीमत पर नहीं खरीद पाओगे। One does not get it again and again। और याद रखना, ये अवसर जो मिला है बार-बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस अवसर को संभालो। और आगे क्या कहते हैं? आइए चलते हैं। इस मौके ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ शिरकत ਕੀਤੀ ਅਤੇ कुछ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट कीते। एक बात जैसे कि मैं हर श्रद्धांजलि में बताता हूँ कि एक बात सच है कि मरना सच, जीना झूठ। ये तो बात हो सकती है कि किसी ने जन्म ना लिया हो, लेकिन जन्म लेकर वो संसार से मृत्यु उसको प्राप्त ना हुई हो, ये नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ऐसी हस्ती थे जिनको वर मिला हुआ था, वो मर ही नहीं सकते थे। उनको इच्छा मृत्यु का वर मिला हुआ था, लेकिन उन्हें भी संसार से जाना पड़ा। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जिनको वर मिला हुआ था, वो न सुबह मर सकते थे, न शाम को, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न अंदर न बाहर, लेकिन फिर भी उनको भी संसार से जाना पड़ा। पांडवों के पिता राजा पांडु को वर था कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ संभोग करेंगे तो फिर भी उनको मृत्यु में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए। कहते हैं कि राजा परीक्षित हुए, जिन्हें एक सप्ताह पहले पता लग गया था कि तुम्हारी शाम के दर्शन से मृत्यु होनी है, लेकिन फिर भी नहीं बच पाए। लेकिन एक बात वो ये करके कि भगवत कथा उन्होंने 7 दिन भगवत कथा सुनी और अपनी नैया पार करके स्वर्ग लोग दे रहे हैं। लेकिन एक तारीफ करूँगा इस परिवार की, जिनके पिल्लर जयपाल गोयल हैं। ये परिवार सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में जितना शहर और गांव फतू टिंगा ऊंचा शहर के कोई भी गांव हैं जितना के सहयोग देते हैं, मैंने शहर किसी परिवार को नहीं देखा। और ये जयपाल जी गोयल और
जीवन गोयल जी के बेटे तीनों ही और विजय गोयल जी सभी धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सत्यनारायण मंदिर में 5500 दुर्गा पाठ हो, चाहे ब्रह्मकुंड की शिवरात्रि हो, चाहे रामलीला कमेटियाँ हो, चाहे फत्तू टेंगे के इर्द गिर्द जितने भी गाँव हों उनके गुरुद्वारों का, शिक्षण संस्थाओं का, सामाजिक किसी तरह का काम, हाई ऑपरेशन कैंप हो, चाहे शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार का योगदान देना पड़े, गोयल परिवार सबसे आगे रहता है। गुरबाणी का फरमान है, मरण लिखाए मंडल में है। साढ़े सतीश कुमार गोयल जी जो संसारण संदीप ईश्वर लेके चले गए, वो एक ना पूरा होने वाला घाटा है। मैं समझदा कि परिवार समाजिक, धार्मिक ते राजसी गतिविधि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदा है। ਅਤੇ सतीश कुमार जी जान के नाल जयपाल गोयल जी नूं ਅਤੇ ਸਾਰੇ गोयल परिवार ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ घाटा पिया, जो कि ना पूरा होने वाला। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता होया यही अरदास करूँगा कि तुसीं एडी वड्डी गिनती दे विच इस परिवार के नाल दुख मनाउण वास्ते आए हो। इस परिवार को सीस दे के जाओ कि परिवार इदां ही देश, कौम ते समाज की सेवा करता रहे। इस संसार को जाना मैं समझता कि सारे ही परिवार वास्ते और इस शहर वास्ते बड़ा ही सह कह वाला दुख है। इस परिवार ने जो अपना इस इलाके दे विच, इस शहर दे विच नाम बनाया है, मैं समझता हूँ बड़ा ही एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है इस शहर वास्ते। हर वो जीव जो इस संसार च आया है, जोड़ा 2 जिंदगियां जी के जाता है, मैं समझता हाँ कि उसका इस संसार च आना सफल हो जाता है। सतीश जी 2 जिंदगियां जी के गए, एक संसार वास्ते, दूसरी परिवार वास्ते। संसार वास्ते उन्होंने इस संसार दे विच बतौर सरपंच एक सोशल सर्विस जो उन्होंने इस इलाके दे विच या इन्हां पिंडां दे विच की है, अज लोग उसको याद करते। जो भी जीव इस दुनिया के अंदर उसका जाना तय है। ये संसार एक सराह की तरह और असी एक मुसाफिर की तरह ये आना है, रुकना है ते चले जाना है। हर आदमी को एक आपको अपना रोल अदा करता है। कई लोग सराह में आते ने, ठहरते ने, उस सराह को नुकसान पहुँचा के चले जाते हैं, गंद पा के चले जाते हैं, तो दूसरे वो इंसान होंगे ने जिहड़े उन्होंने साफ सुथरा रख के उहदे ते महका खिलार के चले जाते हैं। तो मैं समझदा कि सतीश कुमार गोयल जी इस सराह दे विच एक महक खिलार के गए ने। आज आप सारे साडे बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीर श्री जयपाल जी गोयल साहब, उन्होंने दूजे भाई विजय जी, उन्होंने बहुत ही प्यारे भरा श्री सतीश गोयल जी जो सानू सारा संदीप ईश्वर दे गए हैं। आज आप जिते उस विछड़ी हुई आत्मा नमन करने वास्ते और उत्थे नाल ही गोयल परिवार के नाल दुख का इजहार करने वास्ते सारे हाजिर होंगे। टाइम बहुत थोड़ा सा 1 मिनट की गल हुई, सो मैं समझना कि आप सारे भी ते लागे तो सारे लोग जिहड़े ने वो गोयल साहब के परिवार बारे, इन्हां दी जो समाज नूं देन है उहदे बारे बहुत ही चंगी तरह सारे जानते हैं। तो जिहड़े पहले बुलारे भी बोल के गए ने, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे जिक्र किया
ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚ ਪਤੂ ਢੀਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। श्री सतीश कुमार जी गोयल जिन्हें स्वास्थ्य की बख्शिश हुई तो इस संसार में लग है। बहुत ही वधिया परिवार लाला कुंदन लाल जी की लड़ी का एक मूर्ति दिख गया, बहुत ही वधिया इंसान से और समाज की सेवा बखूबी निभाते सी, क्योंकि समाज की सेवा तो ही बंदा कर सकता, अपने रजेबे तो समा कटना पैंदा। सो पिंड की सरपंची भी की, कारोबार भी किया और अपने माँ बाप का नाम भी कमाया। गोयल परिवार में तकरीबन कपूरथले के मन्निया परिवार माना जाता। सो मैं इस दुख की घड़ी में परिवार के नाल शरीक होता हुआ सतगुਰਾਂ के चरणों में अरदास करना, सच्चे पातशाह विछड़ी आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शे, पिछले परिवार को साख संबंधियों को भाणा बनने का बल बख्शे। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਸਾਰੇ, ਤੁਰ ਜਾਣ ਤਰੋਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਢਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਗੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। प्यारे वीर सतीश कुमार गोयल जी, उन्होंने रसम क्रिया इतने उपस्थित सारे ही सत्कारयोग रिश्तेदार साहबान, बकरियां बकरियां पार्टियों को आए लीडर साहबान, मेरे सत्कारयोग वीरों भैनों भराओ, सतीश जी बहुत अच्छे इंसान से। मेरे तो पहला बोलते हुए बुलारिया ने ये बारे विस्तार से दसिया, गल्लां हुई ने। दुख बड़ा सारा छोटा भाई इंद्र जी का, जयपाल जी का, विजय बाबू जो भरा विछड़े तो दुख बहुत होता। जिस तन लागे सो मन जाने।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਸ਼ੂ मेरे अपने वीर को मेरिया दो रिश्तेदारियाँ जयपाल के परिवार में, एक पपीशा लो तो एक बाउची दी, और सज्जन परिवार है। जानता दुख बड़ा आप ऐसे करके सारे आए हैं, लेकिन जब कोई अच्छा बंदा जाए दुख भी होता, और मैं कहना वो चंगे कामों को याद करते हुए दुख नहीं करना चाहिए। मालिक की मर्जी है, मालिक बैठे। कई दफा मैं कहना सीरियल देख रहा आजकल अर्तुगरुल जिन्हें टर्की का राज स्थापित किया, जिन्हें मुंडे ने स्थापित किया अर्तुगरुल के 3 मुंडे से बड़ा बड़ा दलेर योधा, 2 छोटे से जोड़ा गमला सगा वो तलवार नहीं चकता सका, वो मन ही नहीं करता सका, उन्हें तलवारबाजी सीखी नहीं, वो पढ़ लिखन योद्धा के कबीले से वो चंगा नहीं समझते थे, तो पढ़े पढ़ाई पहले कम छोटे वाला बहुत बड़ा योद्धा। तो कई दफा रब की मर्जी होंगी है, परिवार व्यापारिक हो उत्थे ब्राह्मण पैदा करते। साडा भाऊ सतीश ब्राह्मण ब्राह्मण कहते पिंड कहते जी ये पूजा पाठ ही करता रहे, व्यापार भी किया, समाजिक काम भी किए, धार्मिक इधर कम पुखा साढ़े भरा यह व्यापारिक कम च पंडित जी तुम भी उस कैटेगरी चो। सो यह दलेर है, इन्हें दलेरी च डोगरा साहब गलती होगी तो टाइम नहीं देता, चलो माफ़ी मिलते हो और संगत तो माफ़ी मंगा तो लेट किया, क्योंकि पोलिटिकल पार्टियां बंदा 2-2 मिनट बोलता है कि उन्हें आप प्रोग्राम पे जाना, सॉरी जी हमें मैं पूछ गया, मैं कहना जब थोड़ा जिहा रकम छोटा कर दिए। सो मैं माफ़ी मांगता उस गलती को लेट करूँगी तो तुम धन्यवाद करना, कोई जरा पिछले धन्यवाद करना। तो मैं बहुत लंबा ना बोलता हुआ गल्ला बहुत नहीं कर लूँ, लेट नहीं मैं करना चाहता। सच्चे पातशाह के नाम भाई के चरणों से अरदास बेनती करनी चाहता कि इस परिवार को तुम व्यापारिक तौर पर सारे पंजाब च जयपाल तक मोरी कोई ना सारे इकट्ठे देना हूँ जे मैं तो मेरे मगर मेरे भरा आ उन्होंने नाम कोई लवे ना ले भाई ना ही आ गया। सो जयपाल परिवार का नाम उच्चा किया, भरावां ने तेरा साथ दिता, बगैर भरा के कुछ नहीं। सो बहुत लंबा ना बोलता होया मैं इन माझे च भी देखा ये है भी है, इधर आके थोड़ा जहा ठीक हो जाता उधर उन्होंने लगाई है। मैं अपने इलेक्शन देखा और इस परिवार का मैं ऋणी हाँ। 2004 तो लगातार 2002 तक कपूरथला होगा, 2004 सुल्तानपुर पहली बार लड़ी। आज कप्तान साहब के थे आएंगे देखे थे मैं चले गए काल बड़ी गई। चलो मेरा मतलब कहना कि कप्तान साहब उस वे चांस होंगे, परिवार ने बहुत साथ दिया, ऋणी हाँ। मैं किसी ऐसी पार्टियों में बेनती करनी चाहूँ मैं बुलाया क्यों सारे मैं इस करके बुलाया कि व्यापारी बंदे की तो जान ना इतने होती है माड़ी जी संगी नप दो ज्ञान। सो हाथ जोड़ के बेनती आ कि इन्हों की संगी ना नपो, पंजाब की संगी नपी जा रही है। जिथे कितने मैं देखो व्यापार के उल्टी एकदम मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा तुम जरा हो रहे तो उपर उठ के सोचो कि अज व्यापारियों की संगी नपी जा रही है। आम आदमी पार्टी की नहीं गल करता कि चीमा साहब मैं सारे पंजाब की गल कर रहा कि संगी व्यापारी की ना नपो, व्यापार चलन रही है और अंदर नहीं आ पाया तो मैं माफ़ी मंगता। वो भी थोड़े अंदर व्यापारी आ उस 2 दिन होना 2 दिनों 9 दिनों का काम करके जाता, जिन्ना सियासी पार्टियां 9 दिनों करती वो 2 दिनों करके जाता, वो भी हाजिरी प्रवान कर लो।
सत्कार शख्सियत और उद्योगपति साढ़े वीर श्री सतीश गोयल जी जिन्हें अंतिम क्रिया में शामिल होने आए। गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु रूप सात संगत जियो आदर सहित फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे ही कपूरथले के महान शख्सियतां ने श्रद्धा के सत्कार से सुमन भेंट किए ने। मैं गोयल परिवार वालों तुसी अज गोयल परिवार को ढारस देने वास्ते आए हो, हौसला देने वास्ते आए हो। ਤੁਹਾਡਾ सारिਆਂ का परिवार वालों राणा गुरजीत सिंह जी वालों बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं चाहता सी कि जो राणा गुरजीत सिंह जी धन्यवादी भाषण कर रहे थे तो मैं उन्होंने नाल सत्कार में मैं हुक्म होया खड़ा होया सी, पर मैं हुक्म होया कि मैं भी श्रद्धा के सत्कार भेंट करा। मैं अंत में उस महान शख्सियत को शीश झुका के, क्योंकि भगत कबीर जी ने भी अंत में सतगुरां दे अकाल पुरख दे गाड़ी अरदास की सी। कहत कबीर सोहरे संतो खेती करो नबेड़ा, अब की बार बख्श बंदे को